Good evening to you. So, yeah, the question you asked, five and casually anything is possible. Why do you even count when Good people evening, are sir. good evening? I Hello. just asked for fun. Good evening, sir. Hello. Yes. What did you say? It was just a fun. Oh, come on. I can You have muted yourself. Hello, Sabadi. Good evening, sir. Good evening. I can make sentence and I wrote a sentence, but I didn't send in the group. Listen, my sentence was the teacher said that if I study hard and work smart and stay focused and practice daily and believe in myself, I will succeed. Yeah. So this is a casual way of talking. Okay, people can do anything like that. No problem. These are not, we don't have rules. These are common sense in language. You will grow slowly, what sounds okay. Repetition is never appreciated unless there is a repetition for a particular effect. Sometimes we do repetition for a particular effect. For example, this is a figure of a speech actually. If you listen to that speech by the black leader of America, Martin Luther King, at the beginning of each paragraph, he had a speech, okay, long speech, and again he did a line. So sometimes it is done to create a certain impact on the audience. So yeah, totally. Otherwise, repetition, is mostly avoided. Like any sort of repetition. We avoid repetitions of nouns with the help of Good pronouns. evening, sir. Hello, Yasmin, ma'am. Good evening. Sir, did you have a party? How was your wedding anniversary? Personally, I don't understand this idea. Once in a while, if it is an important anniversary, then maybe people can throw a party and invite people to join them in the celebration. But personally, I think an anniversary is a husband-wife thing. So Yes, sir. I keep it personal. I go out of Bihar Sharif, I spend the entire day with my wife, talking to her, discussing things, doing things together, eating in a restaurant, stuff like that. So one day for both of us out of 365 days. That's my idea of celebrating anniversary. Some people Sir, ask, it's very personal, but what gift did you give? no, I didn't give her anything. I didn't give her anything. She bought me a Sir, this is not fair, sir. sweatshirt, but I didn't like the color so much. And we have been married for such a long time that it doesn't matter anymore. I tell her how I feel about what she has bought. If it was a new marriage, then I would have maybe said, "Oh, lovely." But I knew I didn't like it. I didn't like the color. And she bought it online. She didn't get to see the product. Otherwise, she wouldn't have bought it maybe for me. So yeah, my point is, anniversary, in my personal opinion, is a private affair for a husband and wife. sir. They should celebrate it. Hadi, mommy. Hello, Hadi. Zafri. Sir, you see them? Are you still at the wedding? You still at the wedding, Zafri? Yeah, yeah. Oh, Not haven't restaurant, sir. I'm in restaurant. you are in a restaurant? Okay. They have been love in since 2027. Uh-huh. There are lots of people speaking together, but we cannot hear your voice over their noise. They Very have noisy. been love in since 2007, Uh-huh. and now they got married. Okay. Okay. All right. That's lovely. Two long-time friends are getting married. That's nice. Hmm. So, what are we gonna study?
No. Good evening, sir. Evening. Good evening, sir. Good evening. And thank you very much for all your wishes, guys. Lovely wishes. Thank you very much. And what are we going to study today? Was there some homework for today? I think there was, maybe, from the practice book. We have to practice the after reading the stories. Which stories? Those 7 short stories, Roman stories. 7 short stories. Oh. Did I share the video or not? No, sir, I think you have forgotten. I messaged you in the group. I think you didn't see. No, I was away from my phone almost all day yesterday. Okay, never mind. We're gonna do something else. Do you want to talk to each other first, maybe, about the changes that the Romans brought to the English society or English culture? The things, the changes that are a gift from the Roman Empire to Britain. So the questions in exercise 3 and 4, we want to do this. Have you read the text? If you guys are all ready, if you're all prepared, we can go and practice in the breakout room. Or maybe we can skip it. You know what? Personally, I have an opinion. Can I share? I believe that the theme should be interesting, you know? The theme should be interesting to the learner. And deep down, I know what the Romans did to Britain is none of our business. So we could not generate that kind of interest in this chapter. Am I right, guys? Yes, sir. Yeah, I felt that, I always feel this. I wish I could change this story. Maybe I'll bring something else in place of this story next time, I have always felt this way. The students don't really find themselves very excited about this text. But the next, exercise, the next, not the next exercise, it's a listening exercise. It's great, actually. And you guys are all going to be very interested. It's a conversation between a grandmother and a grandson. And, history repeats itself. So there are some people who are very interested in finding out about their ancestors, who their ancestors were, where they came from, what jobs they had, what kind of life they lived. Some people are really keen, okay? So this exercise is about one such young man who wants to know about his forefathers, and he's talking to his grandma. Okay, is researching your family history popular in your country? Like I said, it's a controversial matter actually in India. Some people, and I don't know, I think it depends on how you approach it. What you have been taught,
all your childhood, what you have been fed, what you have been fed, not taught. क्या खिलाया गया आपको in the name of thoughts, in the name of ideology. Depends on all these things, you know. I talk to people who come from South America, and I ask them how they feel about, you know, the Spanish invasion. A lot of them are neutral. Majority of the people I talk to are neutral. They don't have any negativity, negative thoughts about the Spanish invasion. The Spanish ruled over them for 300 or more than 300 years, guys. Okay, and they have kind of destroyed their culture quite a bit, you know. They have taken their language away from them. Most people speak only Spanish now. And still, they don't have any negativity for those invaders from Spain somehow. I'm telling you what I felt. You guys can be online, talk to people from, you know, Mexico, from Peru, from Lima, from, you know, Chile, from Argentina, and you will not find many people who will complain about this thing in the past somehow. Okay. So researching history is like, you know, digging the past, some people say, you know. I don't know. What do you know about the lives of your grandparents and great-grandparents? Well, we have already discussed this. Now we are going to go to number 2, 6.13. Listen to Dr. David Taylor Buse. David Taylor Buse. Okay. There are 3 words to this name. How many words are there to your name? What do they signify? If you talk to people from different countries, you will be surprised to know how they write their full names, which words find place in their full name. In India, it is traditionally, okay? Traditionally, it is very simple. You write your first name, which is your individual name. That's your first name. The second name is usually your father's name here. And then the third name is a name that shows your caste traditionally. However, with changing times, the last name, the third word in our name now shows our family name. We call it family name, okay? Like my name is Vinay Shankar Soni. So Vinay is my first name, Shankar is my father's name, and Soni is my family name. You know, Sachin Ramesh Tendulkar. Sachin is his first name, Ramesh is his father's name, and Tendulkar is his family name. So in modern India, there are usually 3 words to the name. Simran, do you have 3 Hello, words? sir. Hey, Lucky. No, sir. So what do you write? What's your Simran full Bharti. Simran Bharti. Do you think Bharti is common in all your family members' name? No, No. it's Gupta. Okay. So a lot of them use Gupta. Okay. So it was your decision to change it to Bharti or somebody else's decision? No, it was my mama decision because she didn't want to have a lot of paperwork after marriage. She didn't want a lot of what? A paperwork after marriage, like she was like when she got married. After her marriage, she had to do so much paperwork for changing names, Okay. So surname. why do you think Simran Bharti? Because your name is Bharti, it won't need to be changed. What do you mean? Yeah. Yes. What do you mean? Like after marriage, my name will not be changed. Like my title will not be changed. It will be added, but not changed in my all documents. You could have done the My same. You could have done the same with Gupta. Yeah, I could, but it was my mother decision because she was earlier Kumari, and then after she got married, it was Devi. लड़कियों का प्रमोशन होता है. All right, guys. कुमारी. All right. देवी. आप कब बनेंगे देवी, सिमरन? But after my sister got married, she got her name like Shivani Bharti Gupta.
Okay. All right. If it was Gupta already, then it would be Simran Gupta Gupta. No, then in the middle, like the husband names will come. Yeah. Like It will for be Simran example, Gupta if Square. no. Okay. Anyways, so as I said that in India we have normally three words. Saba. Sabaji, your name is Saba Afreen. My family name is Hasmi, Okay. Your and my family. full name is Muhammad Zafri Ali Hasmi, but in Yes. my ID only MD Zafri. Okay. His full name is Muhammad Zafri Ali Hashmi. Okay, Sabaji, your surname is Afreen. Is this common in your family? Everybody in your family has Afreen. Yes, sir. I have three sisters, and all sisters are last name is Afreen. Okay. Zeba Afreen, Saba Afreen, and Daraksha Afreen. You don't have three sisters, Sabaji. You have two sisters. Sorry, sir. Very sorry. I have two sisters. Okay. Yeah. All right. So, guys, we are going to listen to David Taylor Hughes. He comes from England, but now lives in Perth, Australia. David has become interested in his family history and is researching it. Okay. He has become interested. उनको interest जाग गया है. He has become interested in his family history and is researching it. He is researching it. It refers to Family. His family. family history. History. Yes, sir. Family history. It is written right here. He has become interested in his family history and is researching it. Researching what? What he has become interested in. He has become Family. interested in his family history and he is researching his family history. Ready? Let's listen to 6.13 then. You guys will have to answer these 8 questions while you're listening. While listening, you will have to write the answers. So fully focused you need to be, otherwise the information will slip. 6.13 David Taylor Hughes. I come from Newcastle in England, but I live in Perth, Australia now. I've been here nearly 10 years. My wife, Jodie, is Australian, and our children, Russell and Alice, were born here. Alice is named after her great-grandmother. That's my grandmother, Alice Hughes. She's 89 now and still lives in Newcastle, and she's in great shape for her age. Now, there's a programme on TV called Who Do You Think You Are, where famous people find out all about their family histories, going right back. I love it, and it's made me want to know more about my own family history. You can do a lot of research online, but even better, I've started finding out more from my grandmother, and she loves talking about it all. I knew that she was one of 9 children, which is amazing, but I didn't know she was the youngest, and the only one born in England. Her brothers and sisters were all born in Scotland, and that's where we all come from originally, from the Orkney Islands, which are in the very north of Scotland. My great-grandfather was a farmer there over 100 years ago. And I love this. My grandmother told me that our family's ancestors were actually Norwegian. They came over to Scotland in the 9th century. She says that's why we all have blonde hair in our family.
Isn't that amazing? Anyway, it became more and more difficult for my great-grandparents to make a living there as farmers. So they travelled south and finally arrived in the north of England in Newcastle with their 8 children. Alice was born not long after they arrived. 6.13. So, was that enough to answer all the 8 questions, guys? No. So, maybe playing one more time is necessary. Okay, fine, I'm playing it again. Listen and write your answers in the shortest way possible so that you can remember what you have to say as the response to these questions. I'm not asking you to arrange every word like a fair copy answer. Okay, I'm not expecting that. Just write down anything you want, which will remind you of what the answer should be. So your main focus should be on listening and understanding the conversation, the audio. And just write down a couple of words to remind you of what you have to say later. Playing it again. Be smart. Be smart. Okay? Without being smart, you can't answer because you can't write at the speed of speaking. David Taylor Buse. I come from Newcastle in England, but I live in Perth, Australia now. I've been here nearly 10 years. My wife, Jodie, is Australian, and our children, Russell and Alice, were born here. Alice is named after her great-grandmother. That's my grandmother, Alice Buse. She's 89 now and still lives in Newcastle, and she's in great shape for her age. Now, there's a programme on TV called Who Do You Think You Are?, where famous people find out all about their family histories, going right back. I love it, and it's made me want to know more about my own family history. You can do a lot of research online, but even better, I've started finding out more from my grandmother, and she loves talking about it all. I knew that she was one of 9 children, which is amazing, but I didn't know she was the youngest, and the only one born in England. Her brothers and sisters were all born in Scotland, and that's where we all come from originally, from the Orkney Islands, which are in the very north of Scotland. My great-grandfather was a farmer there over 100 years ago. And I love this. My grandmother told me that our family's ancestors were actually Norwegian. They came over to Scotland in the 9th century. She says that's why we all have blonde hair in our family. Isn't that amazing? Anyway, it became more and more difficult for my great-grandparents to make a living there as farmers. So they travelled south and finally arrived in the north of England in Newcastle with their 8 children. Alice was born not long after they arrived. How long has David lived in Perth? He has lived for 10 years 10 in years. Perth. He has lived for 10 years. Does it mean he still lives there? Yes. Yes. Very Yes. He started living there He is now 10 years ago 85. and still he's here. He is now 85, I think. No, we are not Mhm. talking about Alice Buse. We are talking about David. How long has David lived in Perth? He has lived there for 10 years, which For 10 means years. he's still there. He is still there. Who are the 2 Alices in his life? His One is her daughter, grandmother one and is her his grandmother. daughter. Grandmother and daughter. One is his daughter, the little One Alice, is his, and one is his grandmother, Alice Buse, we can see in the picture. Okay, guys, it is very typical in the Western culture that they like somebody in their family or somebody anyway, they admire someone, they give that person's name to their children to show their admiration for that person. It's very common. Okay, 3, where does his grandmother live?
England. Her grandmother lived Newcastle. in Newcastle, England. In Newcastle. Okay. She lives in Newcastle. Where were her brothers and sisters born? Scotland. In England. In Scotland. 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 No, guys, you're getting it In wrong. England. No, you're getting it wrong. Sister born in Can you see this map in the middle of the page? Yes. Iceland. They were born in Norway. That now it is guesswork. Now it is guesswork, guys. It is Sir, there guesswork. is Norway, That's what I'm Scotland, saying. England, It and is Australia. guesswork. Don't do guesswork. Okay, you are supposed to answer what you listen. And if you don't remember, no problems. You forgot. That's okay. We can listen to it one more time. What did her father do for a living? He was a farmer. He was a farmer. Her He was father was a farmer. Farmer. Very clear. Farmer are two different words, guys. Farmer. Don't farmer. make pronunciation. Next. What did her ancestors do in the 9th century? He said that for 100 years their family was doing farming. What did her ancestors do in the 9th century? Anyone? No. Farming. Okay. Improve your listening skills, everyone, if you want to improve your speaking skills. Okay? You don't need to do anything to improve your speaking skills. Got to improve your listening skills. I have some, tips for you today. But after this, what does she say is the result of this? Blonde hair. So you do not know the reason, but you know the result. Why did the family leave the Orkney Islands? Because it was difficult for the lifestyle. Okay. I was talking about sharing some tips. Guys, why do I say listening helps and you guys don't feel that? How many of you spend hours and hours listening to English without getting bored and realizing that you are definitely benefiting from it? Aye, sir. Okay, great, Arish. Who else is here? You could say that when I listen to English, I feel a real joy. I feel like I'm learning so much. How many of you can claim that? I did, sir, but I'm busy. Sir, I have shared a video in the group. Did you see that video? The woman speaking funny English? Yeah. She Yeah. is speaking too fast in bullet train speed. Yeah, exactly. But By the way, Rosanna ma'am caught her words. because Rasana has a much better understanding of English than many of us here. It's just that she's appreciated an that. old lady. She's an old lady. She's in her 60s, guys, mid 60s now, okay? I can say she is the wise ma'am. She's wise, that's another thing. It has nothing to do with her English, right? Wise man can be living in a village in India, who never went to school, but he can be wise. Wise has experience and wisdom, things that are important to real life. I'm talking about her skills in English. She has much better skills than many of us here. I'm not talking about speaking skills because she's an old lady. Ooh, when you are 65, your faculties are not as sharp. Okay, when you are 45 years old and you are told some facts, okay, some information, and you're asked to repeat them all, you will not be as sharp as you were when you were in your 20s. You will drop a lot of it because your faculties are now declining. Some people lose their faculties. Faculties, when I say, I mean to say ability to see, ability to hear, ability to reason, ability to remember. All these things are called faculties, okay? So
Yeah, my point was, you guys don't take these things into account when you talk about Rosanna. You know, you kind of think, oh, you compare her to yourself. You guys, when you are in your 60s, you know, and if you could do what she's doing, that would be amazing, you know. I don't know if I can do what she's doing in her 60s. Will I be that sharp as she is now? I'm not sure about it. My mother is in her 70s, okay? Early 70s, I would say, early or mid 70s, about 10 years older. Yeah. So she can definitely not do any of this. She cannot start learning a new skill. It's going to be very hard for her. Very hard. She will be frustrated very soon. Okay. So you guys maybe were surprised. I would not be surprised that she understood a lot of it. Okay. Another. I was talking about the clips. Why do I keep saying that listening is powerful and you guys don't realize it? वीआईपी गाड़ी कोई भी गाड़ी नहीं, सिर्फ मित्तल जी की गाड़ी अंदर आएगी, प्रति मित्तल जी की गाड़ी अंदर आएगी, बाकी किसी की गाड़ी कोई अंदर नहीं। Because maybe you don't understand why some people say listening is important. I'll tell you what happens when we listen. I have a sentence. I did this in the previous class, okay? And these are just ideas that I suddenly think of and I share. I have a sentence for you guys. The sentence is, my mother readied me when I was a child for school. My mother readied me for school when I was a child. When I was a child, my mother readied me for school. My mother readied me for school when I was a child. Okay? You understand that sentence? The Hindi of this sentence is, मेरी माँ मुझे तैयार करती थी जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल के लिए वो तैयार करती थी. Okay? Fine. Great. Everybody understood. होता क्या है, when you are a learner of English, you understand this sentence. उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब पे पहले तो नानी याद आती, कुछ लोग नहीं करना चाहते, वो बस इस सेंटेंस के साथ रहना चाहते हैं. चलो ठीक है. What is the verb in the sentence? Ready to. Everybody? It took you so much time to answer, or you knew but you chose not to answer? They did, sir. They did. Okay, what's the subject? Mother. My Okay. mother. ये तो ये सेंटेंस की बात होगी, इस सेंटेंस की बात होगी. अब मैं अगर कोई और सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट क्या चुनूंगा? रेडी वर्ब का क्या सब्जेक्ट चुनूंगा? अब ये सवाल है, ताकि मैं समझा सकूं Sir, आपको. my mother helped me ready. यस्मीन मैम, आपने एक सेंटेंस सुना, अभी उस पर रुकते रहते हैं. कोई और अल्टरनेटिव पे अभी बात नहीं करेंगे, अभी इस पे बात करेंगे, फिर अल्टरनेटिव पे बात करेंगे. ओके? जो आपके कान में पड़ा उससे क्या जाना आपने? मैंने कहा ना, लिसनिंग इज पावरफुल. ठीक है? तो क्या है कि कुछ बच्चे इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं, लिसनिंग इज पावरफुल. A lot of them fail to understand कि क्या पावरफुल. कुछ तो नहीं होता, वो सुनते हैं 2-4 दिन फिर छोड़ देते हैं, कहते नहीं मजा आ रहा है. क्यों नहीं मजा आता वो बताता हूं. आज कोशिश कर रहा हूं बताने की क्या गलती होती है आपसे. आपने एक लाइन सुना, माई मदर रेडीड मी फॉर स्कूल व्हेन आई वाज अ किड. तो आपने एक सुना कि रेडी वर्ब है, रेडी का सब्जेक्ट हो गया माई मदर. मैंने पूछा कि अगला सेंटेंस आप बनाओगे तो आप अगर रेडी वर्ब को यूज करोगे, जैसे ये यूज हुआ, तो आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करोगे? क्या सब्जेक्ट यूज करोगे? देखना क्या जवाब आता है. देखना दोस्तों, देखना आप सबके जवाब कितने मजेदार होने वाले हैं. बताओ क्या सब्जेक्ट होगा आपका? आप इस सेंटेंस सुन के क्या सीखे? जो सीखे उसके दम पे बताओ, इसी सेंटेंस के दम पे बताओ. कोई पहले प्रायर नॉलेज मुझे नहीं चेक करनी आपकी. ये सेंटेंस सुना, सुनो, मैंने कहा था लिसनिंग इज पावरफुल ना. ये सेंटेंस सुन के आपके दिमाग को क्या मैसेज किया? क्या सब्जेक्ट होना था? क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? माई मदर रेडीड मी फॉर स्कूल. Aditi, whose idea was this? That I need milk with, turmeric? Okay. Tell her not to next time. Okay? Okay, people, please answer the question. आपने ये लाइन सुना, इसीलिए मैं कहता हूं लिसनिंग इज पावरफुल. मेरे दिमाग को एक मैसेज जा रहा है, आपके दिमाग को मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्लियरली देखना है मुझे. क्या जाना? रेडी वर्ब का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? क्या होता है?
नहीं, लॉजिक करना है। एक सेंटेंस सुना, माई मदर रेडीड मी फॉर स्कूल, इसकी मीनिंग समझ में आ गई, रियल लाइफ में सिचुएशन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, रेडी वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? जब तुम सब सेंटेंस बनाओगे तो क्या इंश्योर करोगे? Get थर्ड sir. पर्सन फिर से he लकी। she it. Sir, third person he she it, like I'm telling you my mother she. अब सुनिए जरा सा मेरी बात और कहिएगा कि ये जवाब आप लोगों ने क्यों नहीं दिया। मैंने आपको काफी समय दिया देने के लिए जवाब। एवरीबॉडी लिसन। रेडी, माई मदर रेडीड मी फॉर स्कूल। तो इस सिचुएशन में दो लोग होते हैं, एक जिसको रेडी किया जाता है और एक जो रेडी करता है। दो लोग हुए और इसका Yes sir. सब्जेक्ट है रेडी करने वाला। क्या ये सच है? इस सेंटेंस में ये मैसेज मिला। हमें यही मैसेज लेना चाहिए सुनते समय। हर एक सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ड्स जो है उनका क्या रिश्ता है एक दूसरे से रियल लाइफ में, और वो इंग्लिश में कैसे अरेंज होते हैं ये देखना चाहिए। इसी को कहते हैं लिसनिंग इज पावरफुल। जितना आता जाएगा आप सीखते जाओगे। बोले क्या हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। माई मदर इज द सब्जेक्ट, फिर मैंने कहा इस सेंटेंस में माई मदर सब्जेक्ट है। इससे क्या समझ में आया? यही कि जो तैयार करेगा वो सब्जेक्ट होगा। राइट? बात समझ में आ रही है? आप लोग सेंटेंस तो फिर भी बना ही लेते फटाक से, कोई ना कोई ऐसा कॉपी कर देता, लेकिन ये लेसन क्यों नहीं लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है रेडी का? तो जवाब है जो रेडी करेगा वो रेडी का सब्जेक्ट होगा। जो रेडी होगा वो सब्जेक्ट होगा कि नहीं? Yes sir. नहीं, वो तो बाद में लिखा था। वो तो बाद में लिखा था यास्मीन मैम, वो तो बाद में लिखा था। माई मदर रेडीड मी। मी का क्या रोल था इसमें? मेरा क्या रोल था? माई मदर रेडीड मी। मी यहां क्या कर रहा था इस सिचुएशन में बताना? उसको तैयार किया गया, मी को तैयार किया गया। किसने तैयार किया? मां ने। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है और इसी के अरेंजमेंट पे गौर कर लो आप। माई मदर रेडीड मी फॉर स्कूल। सिमिलर सेंटेंस तो आप तुरंत बना दोगे। चलो एवरीबॉडी गिव मी अ सेंटेंस। नहीं सर, रेडी वर्ब सीखना है, लिसनिंग से ही होता है। एक नया नया वर्ब सीखते जाते हैं, नए नए फ्रेजेस सीखते जाते हैं। इससे सीखा, रेडी वर्ब सीखा, सुना, पावरफुल हुए तो आप रेडी Yes वर्ब sir. समझ गए। अब आप सेंटेंस बनेंगे। Yes. बोलिए। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया शब्दों का सुन के, और आना भी चाहिए क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। माँ है, बच्चा है, तैयार की माँ ने बच्चे को, और अरेंजमेंट देख लिया, माई मदर रेडीड मी फॉर स्कूल। चलो अच्छी बात है। आप एक सेंटेंस बोल दो ऐसे ही। कम ऑन एवरीवन। ऐसे ही बोलने का मतलब है रेडी वर्ब जो आप सीखेंगे उसी पर ना फोकस रहना चाहिए। आपने रेडी सीखा, तो रेडी कैसे सीखा? रेडी क्या था? Yesterday I got ready for party. यास्मीन मैम, ये तो सीखा नहीं ना आपने, आप जो जानती है वो बता रही हैं। मैं कह रहा हूँ लिसनिंग इज पावरफुल मतलब क्या होता है कि जो आप सुनते हैं वो आप बोलने लग जाते हैं, अगर आप सही से सोच पाए तो। ये होता है लिसनिंग इज पावरफुल बोलने का मतलब। तो क्या आपने ये लाइन सुना? आप ये लाइन, ऐसा लाइन बना सकते हैं? ये है लिसनिंग इज पावरफुल मतलब। आप पहले से क्या जानते हैं? नहीं, लिसनिंग इज पावरफुल मतलब जो आपके कान में, क्या वो आपको मदद किया कुछ नया बोलने में? बताइए। I readied a new dish for my mother. बहुत बढ़िया जाफरी, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं लिसनिंग इज पावरफुल। फैंटास्टिक। सुना सब लोगों ने? यही होता था I read. Yes, sir. Can I say? Zafri said he readied a new dish for his mother. The relatives ready to the dead person for the funeral. Sorry, Arish, can you repeat? The relatives ready to the dead person for the funeral. तुमने बिल्कुल मेरे वर्ड्स का यहाँ पाछा कर दिया। मेरे वर्ड्स क्या थे अगर रिपीट करो तो तुम ऐसे ही अरेंज मत करते, कुछ चेंज नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये थी। क्या था मेरा सेंटेंस? My mother ready me for the school. माई मदर रेडीड मी फॉर द स्कूल। अब बताओ तुमने क्या बोला? द रिलेटिव्स Ready
The dead guy for the funeral. Dead body, the dead body, the dead body. Readied the Yes. dead body for the funeral. Okay. Very good. Very good sentence. Lucky, Arish, superb. And Lucky has written another lovely sentence. The teacher readied us for the exam. The teacher readied us for the exam. Amazing, Lucky. Tino ke tino, Zafri, Arish, and Lucky. You guys rocked it today with these three examples. क्योंकि आप साबित कर रहे हैं कि how listening is powerful. जो अगर आप सुने और एनालाइज करें सुनने के बाद कि क्या था उसका आपस में रिश्ता, तो आप इस तरह से नए सेंटेंसेस बना देंगे. जो आपने सुना वो आपका हो गया सेंटेंस. मेरे दिमाग में इतने सेंटेंस क्यों है इंग्लिश के, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस कैसे है? बिकॉज मैंने सुना, मैंने सोचा, मैंने कहा ओ ऐसे अरेंज करना होता है. ओके. और कोई एग्जांपल? I did a new dress for my sister. Lovely, Imrana. And Saurabh, you hit another 6 like these three guys. Amazing. क्या बात है सौरभ. लेकिन आई वुड लाइक यू गाइस टू बी ऑन कैमरा. इसमें मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है दोस्तों. जैसे लोग बैठे होते हैं कैमरे पे और बोल देते हैं मुंह पे ऐसे माइक ऑन करके. आई लव I इट. read some stuff for my friends. कैन यू रिपीट यास्मीन मैम? I read some stuff for my friends. ठीक है, ठीक है. थोड़ा प्रिसाइज रहती है अभी तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, ठीक है. अभी थोड़ी I will- प्रिसाइज रहती ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके. प्रिसाइज रहना मतलब समझ रहे ना. आपने स्टफ वर्ड बोला जो कि वेग वर्ड होता है. स्टफ हमेशा वेग होता है दोस्तों, ठीक है. तो प्रैक्टिस के लिए हाँ बेहतर होता अगर आप I प्रिसाइज. read the some dishes for the guest. लवली, अमेजिंग. एंड इधर रवि ने सर another इसमें 6. some arrangement भी हो सकता है क्या? I read some arrangement for my guest. टोटली नॉट ओके, क्योंकि आप देख नहीं रही हैं यहाँ पर क्या हुआ है. ठीक है, अच्छा. आपके अरेंजमेंट देखने हैं आपको. वो मेरे एग्जांपल में तो 3 वर्ड्स थे. माय मॉम रेडीड मी. ठीक है, तो इस पे Yes. समझना है कि मी का क्या कनेक्शन है. ये वर्ड नहीं है मी, ये लाइफ में कनेक्शन है कि दो सिचुएशन था जहां माँ ने तैयार किया बच्चे को. राइट, तो तैयार हुआ कौन? बच्चा. राइट. यहाँ बच्चा हुआ. सारे रवि ने इतना बढ़िया सेंटेंस लिखा है. रवि एग्जाम्पल इज सो लवली. Saurav, you have gone one way ahead. आपका सेंटेंस बाद में पढ़ूंगा सौरभ. Ravi writes, my father readied me for life. What a lovely sentence, guys. Oh yeah. तो देखो आप कैसे आप आगे बढ़ते हो. अगर वो कनेक्शन समझते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताऊंगा कि क्यों आप में से कई लोगों को लिसनिंग इज पावरफुल नहीं एहसास होता. बिकॉज आप लिसन करते हो लेकिन लिसन नहीं कर पाते. जो करना होता है उसमें उन वर्ड्स का एक दूसरे से क्या रिश्ता है वो एक एग्जाम्पल से आप सीख सकते हो. दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली एनालाइज करो सही से. चलो हम वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल टू अनदर. अब मैं एक और सेंटेंस बोलने वाला हूं. मान लो आप ऑडियो सुन रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, कहीं किसी की बातचीत सुन रहे हो और किसी ने कहा माय अंकल रिकमेंडेड विनय सर्स क्लास टू मी. आपने ये लाइन सुना किसी के मुंह से, माय अंकल sir. रिकमेंडेड विनय सर्स क्लास टू मी. सबको मीनिंग समझ में आ जाएगी सुनते के साथ. प्रॉब्लम है कि मीनिंग समझने से कोई लिसनिंग पावरफुल नहीं होती. दिक्कत ये है कुछ लोग को लगता है मीनिंग समझ गए ना तो हो गया लिसनिंग का काम पूरा. ना, लिसनिंग का काम वहां पूरा नहीं होता, वहां तो अधूरा है. पूरा काम तब होगा जब आप इसके शब्दों को एक दूसरे से देखेंगे, एक दूसरे से क्या रिश्ता है, कहाँ अरेंज कौन हुआ है. रियल लाइफ सिचुएशन में जाओ. माय अंकल रिकमेंडेड विनय सर्स क्लास टू मी. My friend recommended a shop for me to कुछ वर्ड purchase some. नीचे हुए हैं इसलिए गलत हो गया. पहले कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हुए इसलिए लिसनिंग पावरफुल तब होता है जब आप इसको एग्जैक्ट समझते हो कि कौन वर्ड्स क्यों कहाँ कैसे है किस तरह से है. सुना हुआ है जो उसको आप पहले से क्या जानते हैं उस पर मतलब नहीं है. यहाँ क्या हो रहा है, माई अंकल रिकमेंडेड विनय सर्स क्लास टू मी. अब मुझे जानना है आप लोगों से, क्या आप ये सेंटेंस समझ रहे हो? तो बताओ रियल लाइफ में क्या हुआ. मान लो कि My जाफरी ने bhabhi recommended a girl for me. भाई जाफरी द सेंटेंस वाज समथिंग एल्स. आई सेड my uncle recommended Vinay sir's class to me. गौर करा क्या था? My friend recommended a shop to me हाँ, for अब purchasing. अब आप लोग गौर करें. अब आप गौर करें, ये आपने कॉपी करा, बहुत अच्छा किया. कैसे कॉपी किया, क्या किया?
तो 3 लोग हैं इस पिक्चर में, एक अंकल है, एक लड़का है और एक विनय सर का क्लास है। ठीक है, देखो कौन कहाँ है। सभा जी अगर आप रिपीट कर पाए ये सेंटेंस, माय अंकल रिकमेंडेड विनय सर्स क्लास टू मी। रिपीट कर लीजिए, पहले दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, पहले ये वाला सेंटेंस, ताकि आप इस पे बेस कर सके अपने दूसरे सेंटेंस को। तो 3 लोग हैं पिक्चर में। My uncle. रिकमेंडेड दिस Your क्लास। uncle and your class and you. हाँ Class for me. ठीक है, एक लड़के ने ये बोला, मान लो इमराना ने बोला कि माय फ्रेंड रिकमेंडेड दिस क्लास टू मी। ओके, तो उसकी दोस्त है, ये क्लास है और वो है इमराना है। देखो कहाँ कौन कैसे जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि कभी लाइफ में, अभी अगर आप समझना चाहते हो इस सेंटेंस को, तो लाइफ में कि कोई आदमी होता है जो रिकमेंड कर रहा होता है, किसी के बारे में अच्छी बातें बोल रहा होता है, वो हो गया जिसके बारे में रिकमेंड कर रहा है। और फिर किसी आदमी को बता रहा होता है कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, राइट। वो आदमी कहाँ जाता है? जो बोलने वाला है कि ये सही है, वो कहाँ रहेगा? रिकमेंड का सब्जेक्ट कौन बनेगा? रिकमेंड का सब्जेक्ट कौन बनेगा? रिकमेंड का सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो my friend recommend a restaurant to me. यस मैम, ठीक है। आप गौर करें, रिकमेंड करने का सब्जेक्ट, रिकमेंड का सब्जेक्ट बना जिस आदमी ने रिकमेंड किया, जिसने कहा वो चीज बेहतर है, वो रिकमेंड का Yes, sir. सब्जेक्ट। ये मैसेज ले जाओ दिमाग में। उसके बाद जिस चीज का नाम लिया कि बेहतर है, वो रिकमेंड के जस्ट बाद होगा। और जिसको Yes, बताया sir. है वो टू के बाद होता है। माय अंकल रिकमेंडेड दिस क्लास टू मी। खाली मी नहीं था, वो टू मी था। तो आपको पता होना चाहिए कि फिर जब, अब आप कैसे बोलोगे सर मैं आपका नाम रिकमेंड करता हूं या करती हूँ अपने रिलेटिव्स को, हमेशा करता हूं या हमेशा करती हूँ, कैसे बोलेंगे? आई ऑलवेज रिकमेंड, यहां तक हम आपकी Your मदद करते class to Third relatives. class to टू माई relatives. रिलेटिव्स, टू माई कजिन्स, टू माई फैमिली मेंबर्स, राइट। बात समझ में Sir, आई? can I say my doctor recommended to vegetarian food for me? आप सारा कुछ लटपट कर चुकी हैं और आप कह रही हैं कि कैन आई से दिस। अगर आप ऐसा कह सकती तो उस ऑडियो में ऐसी बात क्यों नहीं सुनने को मिली आपको? यही है लिसनिंग इज पावरफुल का मतलब, कि वैल्यू करना ये वर्ड्स। होगा my doctor recommended vegetarian to me. वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन हाँ, डिश। vegetarian food for to me. हाँ सबा मैम, आपको Is it उस correct? सेंटेंस को आपने सुना है? हाँ, उसको वैल्यू करना होगा। यस यास्मीन मैम, उसको वैल्यू करना होगा आपको कि कैसे अरेंजमेंट था। आप अरेंजमेंट चैलेंज कर कर गलत करते हैं। अरेंजमेंट चैलेंज नहीं, एडमिट एक्सेप्ट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है। इसीलिए लिसनिंग इज पावरफुल दोस्तों। मैं आज My जितना भी friend बोलता Tafir हूँ, recommended your class for his girlfriend, for his friend. ठीक है। हाँ, recommended Socrates food to me. वेरी नाइस। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप लोग अरेंज करो इसे। हम शीतल चाय किसी को रिकमेंड नहीं करते, हम किसी को शीतल चाय रिकमेंड नहीं करते। अब आप सब लोग, nobody will speak because I want to give everybody a fair chance. Write down the sentence in the chat box. हम शीतल चाय किसी को रिकमेंड नहीं करते। मैंने अभी यही सारी चीजें पढ़ाई कल ये बताने के लिए कि क्यों लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते लिसनिंग को। अब अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप सही से अरेंज करेंगे, और नहीं तो लटपट कर देंगे। दिमाग क्या चलना था, वो पहली वाली बात अगर आपने एनालाइज की थी, आपके जहन में बैठी थी बात वो जाके, तो लिसनिंग इज पावरफुल। खाली वो वर्ड्स याद करने से नहीं होंगे, उस वर्ड को याद सुनना था, उसका कनेक्शन रियल लाइफ से क्या बना, कौन कहाँ कैसे। What is the question, sir? मैं कभी भी शीतल चाय I रिकमेंड stand and ना ना ना, जाफरी नोबडी विल स्पीक, नो नो। No, मैं I कभी sent भी in your शीतल चाय personal. रिकमेंड नहीं करता। मैं कभी भी किसी को ग्रामर बुक्स रिकमेंड नहीं करता। ऐसी कोई बात हो गई, चलो ग्रामर बुक्स कर दी, मैंने शीतल चाय हटा दिया आपके कंफ्यूजन को हटाने के लिए। मैं कभी भी ग्रामर बुक्स, अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर बुक्स नहीं करता, या किसी को भी ग्रामर बुक्स रिकमेंड नहीं करता। I sent you in meeting chat. ओके सिमरन, वेल डन, वेरी वेल डन लकी, वेरी वेल डन आरिश, यू गाइस आर वेरी वेरी गुड। आप समझ लो कि लिसनिंग क्या होता है, सुनो और सीखो, बस यही होता है, सुनो और सीखो, क्योंकि एनालाइज कर सकते हो आप उसको, उसके वर्ड्स को एक दूसरे के साथ। मैं आपको और भी अजीब अजीब चीज सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। अंकित, व्हाई डिड यू यूज द पास्ट टेंस?
इसमें एक गलती हो गई जाफरी, यू रिमूव द वर्ड टू एंड यू यूज द वर्ड फॉर। क्या जरूरत थी करने की? जो आप सुने वो आप सीखे, वही करें, इस आदत बनाए। ओके, खास कर छोटे वर्ड्स के मामले में। I never recommend Shetal Chaya to my friend. और इसीलिए अच्छा सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनोगे, वही ऑर्डर को प्रैक्टिस करोगे। Sir, can I add adverb? Go ahead and write a sentence. Can I speak? Very good, Arish. तू वॉच के जो वॉचिंग कर दो आरिश। Watching. My sentence was like, you highly recommended good tips to me. टिप्स नहीं होते रिकमेंड करने की चीज, रिकमेंड होता है कि फलानी चीज अच्छी है, वो किसी और के बारे में बोला जाता है, राइट। जब आपने अभी सुना था ये सेंटेंस, आप मीनिंग गलत कर गए। और क्यों गलत कर गए? क्यों? क्योंकि आपने फिर उतना डीपली नहीं अप्रिशिएट किया। क्या था? अगर कहा कि आई रिकमेंड योर नेम टू माई स्टूडेंट्स, आप क्या बोलते होंगे उसको? फलाने सर अच्छे हैं, उन्हीं के पास जाओ सीखने। यही है ना रिकमेंड करना। अगर मैंने कहा आई नेवर रिकमेंड अ ग्रामर बुक टू एनीबॉडी, हम कभी नहीं कहते किसी को कि हे ग्रामर बुक पढ़ो, राइट। आई नेवर आस्क। तो इसका मतलब ये, तो सौरभ आपका सेंटेंस का मीनिंग, जो रिकमेंड का मीनिंग था, उसने उसको आपने जाया कर दिया, बदल दिया। टू एनीबॉडी, यास्मीन मैम, टू एनीबॉडी, आई डोंट रिकमेंड ग्रामर बुक्स टू एनीवन। ओके, टू एनीवन। वेल डन एवरीवन, वेल डन, सुपर जॉब। क्या समझे दोस्तों? क्या आपको एहसास हुआ लिसनिंग इज पावरफुल इवेंचुअली, अगर आप लिसनिंग करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, राइट। मैं आपको एक और सेंटेंस दूं। So, what do you think? Do you suggest talking to him? So, what do you think? Do you suggest talking to him? मैंने ये लाइन बोला, ठीक है, सिर्फ इतना ही बोला। Do you suggest talking to him? Okay. अब आप इसमें एनालाइज करो, एनालाइज करो आप, ये आपका काम है, क्योंकि आप मतलब समझ गए हैं। डू यू सजेस्ट टॉकिंग टू हिम, मतलब आपके हिसाब से मुझे उससे बात करनी चाहिए, यही है ना इसका मतलब। डू यू सजेस्ट टॉकिंग टू हिम? ओके। तो जब आपने ये समझ लिया है कि ये हिंदी है, यानी कि आप हिंदी में उस सिचुएशन को समझ रहे हैं, तो सिचुएशन को एनालाइज करो ना, कि वहां कोई आदमी है, एक सलाह दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है कोई चीज, दूसरे को सजेस्ट कर रहा है, और कोई बात ही सजेस्ट कर रहा है ना, यहां कौन सी बात सजेस्ट कर रहा है? इस तरह से एनालाइज करो, इस तरह से एनालाइज करो, यहां कौन सी बात सजेस्ट कर रहा है? टॉकिंग टू हिम, कोई है हिम? ओके, चलो मैं हिम को चेंज कर देता हूं। So what do you think? Do you suggest talking to अच्छा, मैं हिम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मेंशन हुआ होगा, नेचुरल रहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके। तो कोई ये हिम कौन है? ये हिम कौन है? ये दो लोग, यहाँ पिक्चर में कितने लोग हैं? चलो चलो छोड़ो बात, यहाँ पिक्चर में कितने लोग हैं, खत्म करो बात। ये सेंटेंस के पिक्चर में कितने लोग आए तुम्हारे हिसाब से? तीन लोग हैं। एक जो बोल रहा है, डू यू सजेस्ट टॉकिंग टू हिम, जो बोल रहा है, ठीक है, जिससे बोल रहा है वो है, और एक और है थर्ड पार्टी, वो हिम है, ठीक है, एक थर्ड पार्टी में हिम है यहाँ पे। अब ये सवाल है, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मुझसे बात करें, ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मुझसे बात करें, तुम्हारा यही कहना है कि मुझसे बात करें, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब इस सिचुएशन का। अब ये तीन लोग आ गए, तो इस तरह से अगर आपको कभी आए कि भाई हम तो एक ही राय देंगे, जाके अपनी पत्नी से माफी मांग लो, ठीक है, हम तो बस यही राय देंगे तुमको। अब ये आदमी कैसे ये बात बोले, उस हिसाब से जो तुमने सुना उसका एप्लीकेशन इसमें दिखाओ मुझे, क्या कर सकते हो तुम? डू यू हैव इट इन यू? हम भैया हम तो तुमको एक ही सलाह देंगे, जा करके वाइफ से माफी मांग लो। I'll suggest, माफी मांगना का इंग्लिश होता है अपोलोजाइज। I recommend you to सजेस्ट वर्ड था, अभी apologize रिकमेंड नहीं था यहाँ पर, अभी रिकमेंड नहीं था, सजेस्ट था, याद रखें आप लोग। इस अच्छा, तरह से ही suggest, सीखा जाता है, हर एक वर्ड को वैल्यू करते हुए, गौर करके सुनना।
क्लोज लिसनिंग इंप्रूव करिए, स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी क्योंकि आप Yes, में sir. बैठेगा। कैसे बताएंगे आप, बताओ। I will suggest to apologizing to your wife. अच्छा सबा मैम, मेरा सेंटेंस क्या था अगर आपको याद हो तो, जो मैंने Do you पहले suggest talking? Do you suggest talking to him? चलिए बहुत बढ़िया, आपको याद है। अब आप उस हिसाब से दिमाग में रखते हुए बोलिए कि अब क्या बोलेंगे। भाई हम तो तुमको सलाह देंगे, वाइफ से जाके माफी मांग लो। I'll always, I I'll, suggest I'll, you to apologize to her wife, to इसमें his आप wife, नहीं देखी, आप to गौर नहीं their की, wife. आपने गौर नहीं किया। अगर आप गौर करती तो आप ऐसा नहीं बोलती, आप उस लिसनिंग से फायदा नहीं ले पाए। यही वजह है कि कई लोग लिसनिंग नहीं एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो लिसनिंग को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि उनके स्पीकिंग में कैसे वो प्ले रोल कर सकता है। आपने समझा लेकिन नहीं समझा, समझा हिंदी तक, लेकिन आप अपने लाइफ में उसको यूज कर सके उतना नहीं समझा। अगर करते तो ये बात नहीं बोलते, थोड़ा चेंज करके बोलते। क्योंकि आपने क्या सुना, आपने सुना डू यू सजेस्ट टॉकिंग टू हिम। ओके, तो यहाँ जो भी बात सलाह दी जा रही है, जो भी चीज कहा जा रहा है करने के लिए, वो कैसे बताया गया है, आईएनजी फॉर्म में बताया गया है। दोस्तों गौर किया आपने, सजेस्ट के बाद Apologizing. कैसे बताया गया क्या करना है। वेल Apologizing. डन सौरभ, वेल डन। Oh, गौर करा I आपने didn't listen, sir. कि अगर कोई सलाह दी गई, इसमें सलाह दी गई थी किस बात के, जाके बात करो, लेकिन कैसे भी सलाह दी गई थी, टॉकिंग टू हिम। डू यू सजेस्ट टॉकिंग टू हिम। ओके, तो अभी कोई कहेगा हम तो भैया एक ही सलाह दे रहे तुमको, आई विल सजेस्ट अपोलोजाइजिंग टू योर वाइफ। ओके, और सौरभ ने बड़े अंदाज से लिखा है, आई विल सजेस्ट गोइंग टू योर वाइफ एंड अपोलोजाइजिंग। लवली सौरभ, तुम ये बिना किसी हेल्प के कर रहे हो ना, कोई बदमाशी नहीं हो रही है ना, कोई आउटसाइड हेल्प। No, sir. तब ठीक है, बहुत बढ़िया है। नहीं करना दोस्तों, ऐसा कोई फायदा नहीं है। दो चार लोगों के बीच में वाहवाही लेके क्या मिल जाएगा। इंग्लिश सीखना मायने रखता। ओके, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा सौरभ ने। आई विल सजेस्ट गोइंग टू योर वाइफ एंड अपोलोजाइजिंग। लवली, आई विल सजेस्ट गोइंग टू योर वाइफ एंड अपोलोजाइजिंग। ये तुम्हारा सुनने का फायदा हुआ। तुम्हारे दिमाग में गोइंग आया क्यों, क्योंकि तुमने यहां सुना था टॉकिंग टू हर। ये होता है सुनने का फायदा। अब आप मानते हो कि लिसनिंग इज पावरफुल, फट से पता चल जाए क्या करना है हमें। अगर हम उसको एनालाइज करें सुनने के बाद, तो मैं क्यों ही बोलता रहता लिसन लिसन। आज जितनी मेरी इंग्लिश है, सही सही इंग्लिश है मेरे पास, दिस सही इंग्लिश इज ऑल बिकॉज ऑफ माई लिसनिंग। बट सर हमेशा मतलब नहीं अंडरस्टैंड हो पाते ना, सुन सुन के भी। हाँ, जो नहीं हुआ छोड़ दो ना भाई, कोई टेंशन नहीं। जो नहीं हुआ छोड़ दो उसको, इट्स नॉट बिग डील। जो हुआ वहां तो कर लो कि अरेंजमेंट वैसे ही रहे। That's the after point, Ravi. watching Okay? again, we can I'm not talking understand. about the difficult parts. I'm talking about the part that you understand. मैं कहीं से नहीं बोल रहा आपको उन चीजों के बारे में जो आपको समझ में नहीं आती। Okay, दोस्तों? This advice is for the situation when you're listening to something and you understand what you're listening to. Can you understand the situation as well? और उस situation के हिसाब से words का आगे पीछे देख सकते हो? Yes, sir. This is the problem. Most of time, I can't observe the arrangement. I observe a situation, but not arrangement. तो फिर दोबारा उसको सुन लो। ऐसे चीजें सुना करो जिसको रिवाइंड करने का Sir, lots of time happen with me. I'm watching some movie online like Amazon and Hotstar and English language, but I understand what's the action going next step, but I cannot arrange that way. But I understand what's शब्दों को उस सिचुएशन से मिलाओ। जैसे मैंने अभी कहा था, she recommended my class to her cousins, और इस तरह का कोई सेंटेंस मैंने बोल दिया। तो इसमें समझो कि दो तीन लोग हैं, इसने रिकमेंड किया, उसको किया, मेरा नाम बोला कि ये लड़का सही है पढ़ाने वाला, ये आदमी सही है। रुकोगे, थोड़ा देता हूं एग्जांपल। मैं कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग लगे, समझ में आ जाए हिंदी, लेकिन उसके बाद दिमाग लगे। ठीक है, आई विल नॉट हेल्प हिम फिक्स दिस इश्यू। अगर ये लाइन तुमने सुना, मैं आसान कर देता हूं, फिक्स दिस इश्यू की जगह और आसान कर देता हूं, आई विल नॉट हेल्प हिम डू हिज होमवर्क। आई विल नॉट हेल्प हिम डू हिज होमवर्क। तो अगर आप इस लाइन को सुनते हो और अपना दिमाग में ये चलाते हो, ठीक है, कि हेल्प का सब्जेक्ट कौन है, तो आई है,
जिसने मदद करना है, जो मदद देगा वही सब्जेक्ट होगा हेल्प का। आई विल नॉट हेल्प, आई विल नॉट हेल्प हिम डू हिज होमवर्क। तो किसी की मदद करेंगे, वो आदमी जिसकी मदद करेंगे वो कहाँ लिखाया है, तो वो हेल्प के बाद है। ये सब दिमाग में ले जाना है तुम्हें कि हिम क्या है, तो ये आदमी है जिसकी मदद करनी होगी हमें, राइट। जब मदद करेंगे तो किसी की करेंगे मदद, तो वो आदमी कहाँ लिखाएगा, इंग्लिश में। इंग्लिश में वो हेल्प के बाद लिखाया क्योंकि आपके सामने है। आई विल नॉट हेल्प हिम डू हिज होमवर्क। तो हिम है कौन, वही जिसकी हेल्प करनी है हमें। आई विल नॉट हेल्प हिम डू हिज होमवर्क, कोई काम करने में मदद करना है हमें, वो भी हमने लिख दिया। कौन सा काम है भाई, होमवर्क करने में मदद। अब बोलो भैया हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, या सरकार तुम्हारी मदद नहीं करेगी नौकरी लेने में, तुम्हें खुद अपने आप को नौकरी देना होगा, अपने आप के लिए जॉब ढूंढना होगा। सरकार आपकी मदद नहीं करेगी नौकरी ढूंढने में। ढूंढना का इंग्लिश फाइंड होता है, जॉब होता है। चलो आप लोग सोचो इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे। पहला वर्ड क्या, Government won't help you find your job. You have to do your on your own. द गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प। उसके बाद हम यू बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो जिसकी मदद करने की बारी वो आ गए, ठीक है। द गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प यू। उसके बाद कौन से काम में मदद करने की बात थी, तो जॉब ढूंढने में। वहां कौन से Find a काम करने job. में, होमवर्क करने में। तो यास्मीन मैम क्या बोलना था, Find a Find a job. job. फाइन, क्योंकि वहां डू योर होमवर्क था, डूइंग नहीं था, डूइंग नहीं था, इसलिए डूइंग इस बार नहीं The चलेगा। government won't उस help इस बार यहाँ you डू get. था, तो आपको बोलना होगा द गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प यू फाइंड अ जॉब। आप अगर वैसे ही अरेंज कर पाए तो जब आप सुनते हैं, जो समझ में आ जाए बात, तो उसको लाइफ में, रियल लाइफ से वर्ड्स को मैच कराइए, कौन कहाँ किस किस जगह पे है। अगर सुनिएगा, मैं और दे देता हूं एक एग्जांपल। मैंने कहा था द गर्ल वॉज किडनैप्ड, द गर्ल वॉज किडनैप्ड ऑन हर वे टू स्कूल, शी वॉज किडनैप्ड ऑन हर वे टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में आप ऑन हर वे को कैसे नहीं समझ सकते, आपको हिंदी समझ में आ गई है। Yes, sir. लड़की स्कूल जा रही थी, किडनैप हो गई। Hmm. अब हम बोल रहे हैं हम पटना जा रहे थे, मेरा तबीयत खराब हो गया, तो हम क्यों अरेंजमेंट पे उसी तरीके से नहीं रख सकते। अगर हमारे दिमाग में वो अरेंजमेंट है। क्या था मेरा सेंटेंस, द गर्ल वॉज किडनैप्ड ऑन हर वे टू स्कूल। तो क्यों नहीं बोल सकते, बोलिए। जो आया सामने वो आपका हो जाएगा। I got sick on her way to Patna. I fell sick। हाँ. आगे क्या बोलना है, वो स्कूल जाते समय कैसे बोला था, I got sick ऑन द वे on टू स्कूल था। my तो अब आपका सेंटेंस क्या होगा, to Patna. अब सुनिए, द गर्ल गॉट किडनैप्ड ऑन हर वे टू स्कूल बट शी escaped her kidnappers within 2 hours, but she escaped within 2 hours, she escaped her kidnappers within 2 hours। तो escape का वर्ब सब्जेक्ट कौन है, Girl. वो गर्ल। अब रियल लाइफ में कौन होगा escape का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में गर्ल हो गया, ठीक है यास्मीन मैम। अगले, अगर इस लड़की का इससे कनेक्शन समझ में आता है, तो अगले सेंटेंस में escape का सब्जेक्ट कौन होगा, जो भी बच के निकलेगा वही। इसमें लड़की बच के निकल गई, तो जो बच के निकलेगा वो escape होगा, वो सब्जेक्ट होगा escape का। ये बात आप क्यों नहीं जवाब दे पाते हैं, ऐसा जवाब क्यों नहीं दे पाते आप, क्योंकि आप सिर्फ इस सेंटेंस पे रुके रहते हैं। आपकी क्षमता नहीं आती है कि आप रियल लाइफ में इसको ऐसे एनालाइज करके, जो बच के निकला, यहाँ बच के कौन निकली थी, लड़की निकली थी ना, तो जो बच के निकलेगा वो Yes, सब्जेक्ट sir. बनेगा। कौन बनेगा सब्जेक्ट escape का, Girl. नहीं, ये तो गर्ल इस सेंटेंस में है। अगले आप कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हो तो escape का जो सब्जेक्ट कौन बच के बनेगा। निकलेगा वही। अब ये अगर आप समझ गए हैं तो आप बताइए कि एक लड़की नहीं निकल पाती है एक अनहैप्पी मैरिज से, कैसे हम बोलेंगे ये बात।
निकल पाती हूँ। ज्यादातर केसेस में अगर नहीं निकल पाती है। अगर सिमरन, क्या ये doesn't मुश्किल है सेंटेंस बोलना? escape Girl doesn't escape escape her married her her marriage. unhappy married life. सिमरन, आपके लिए मुश्किल हो रहा है ये अरेंजमेंट? क्यों बेटा? कौन सी Sir, जगह my पे? health is not good. Okay, that's a totally different matter, and I hope it is not about what I'm And teaching. yeah, and sometime also I got confusion in subject verb agreement. I'm not talking about subject verb agreement. You are talking about something else. I'm talking about something totally different. I'm talking about the relation between the subject and the verb, not subject verb agreement. सब्जेक्ट होता कौन है? आप लोग अभी अपना जो आरिश है वो इतना गंदा सेंटेंस लिख दिया, इतना सब कुछ समझाए जाने के बाद। क्यों? क्योंकि उसने सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता नहीं गौर करा एक सेंटेंस में अच्छे से। आपसे ये जब आपने एक लाइन सुना, द गर्ल एस्केप्ड हर प्रिजनर किडनैपर्स, तो किडनैप सॉरी एस्केप का सब्जेक्ट कौन है? She, the girl. तो द गर्ल, उसका क्या कनेक्शन है रियल लाइफ में? वो बच के भागी है ना, तो कोई कल के डेट में कोई और बच के भागेगा, वो बनेगा सब्जेक्ट उसका एस्केप का। ऐसे सोचो। तो मैंने कहा एक लड़की के लिए अनहैप्पी शादी से निकलना आसान नहीं होता, नहीं निकल पाती है, तो क्यों नहीं बोल सकते हम ये सेंटेंस फिर से? हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है, क्यों नहीं कर सकते हम? सब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला? कौन बच के निकलने की बात हो रही? किसके? लड़की बच के निकलेगी, तो बता देंगे कैसे बोलेंगे। गर्ल्स कांट और फेल टू, एक कांट भी बोल सकते हैं और फेल टू बोल सकते हैं। फेल टू एस्केप, गर्ल्स फेल टू एस्केप अनहैप्पी मैरिजेस। तो अगर आप सुनोगे इस तरह से तभी तो, क्या ही मुश्किल हो गई इसमें? प्रॉब्लम आपके सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में सुनने के बाद आप उसको रियल लाइफ से ऐसे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, ये नहीं कर पाते आप। एक दूसरे से क्या रिश्ता है उन वर्ड्स का बनता है, ये नहीं आप गौर कर पाते। एंड इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दिस, इट विल बी वेरी इजी। If you Sir, remember, explain my first sentence. Which one? I read it myself for a big presentation. And there is हाँ, one अब phrase आ in रहे the आते हैं। sentence. ठीक है कि Only एक me. sentence सौरभ ने बोला था और मैं आप लोग के पास आता हूँ। मैं तैयार हुआ को इंग्लिश में बोलिए। मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ। सारे लोग इंग्लिश में बोले मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ। कम ऑन एवरीबॉडी, मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ। I got ready for school. I read it for school. Yeah. I read it for school. I ठीक read है। it actually. I read it for school, सही है? Yes. सवा जी, सिमरन? Yes, sir. यस I सर। got ready यही प्रॉब्लम है, for यही school. प्रॉब्लम है। थोड़ी देर got पहले सब लोग अग्री किए कि रेडी का सब्जेक्ट वो होगा जो रेडी करेगा, लेकिन नहीं, आप इसमें तैयार हैं। आई रेडी इट फॉर स्कूल सही लगा आपको। किसको तैयार किया तुमने? No, sir. I say I got ready. Myself. एक सेकेंड सर, रुक जाना। ये सेंटेंस कैसे सही हो गया? आई रेडी इट फॉर स्कूल कैसे सही हो गया? इस तरह की गलतियां होती रहेंगी तुम्हारे लोगों से अगर तुमने वर्ब और सब्जेक्ट के रिश्ते को गौर नहीं किया गहराई से। जब तुमने कहा था माई मदर रेडीड मी, तो एक को तैयार किया गया था और किसी ने तैयार किया था, तो रिश्ता Yes. समझ में आ गया था। माई मदर रेडीड मी, तो आई रेडीड जब मैंने कहा तो कैसे हो गया? आई रेडी इट फॉर स्कूल कैसे सही हो गया? मैंने किसको तैयार किया भाई? कैसे सही हो गया सिमरन? किधर था कनेक्शन वो? तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि एक सब्जेक्ट वर्ब का क्या रिश्ता आपस में, उलट पट करते रहेंगे आप ऐसे ही। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल। I ready my kid for school. Is it correct sentence? कोर्स, क्योंकि आपने तैयार किया, अपने बच्चे को तैयार किया, तो जो तैयार करता है वो सब्जेक्ट होता है, तैयार कर दिया। Yes. ठीक है, लेकिन आई रेडी फॉर स्कूल कैसे हुआ? मैं तैयार हुआ, मैंने जान के हिंदी बोली कि मैं तैयार हुआ स्कूल के लिए, और मैंने जानबूझकर गलत इंग्लिश बोली कि सब लोग बोले नहीं सर आपने कहा था रेडी का सब्जेक्ट तैयार करने वाला होगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं आई रेडी, जब आप कह रहे आप तैयार हुए, तैयार किए नहीं, तैयार करने वाला। मम्मी तैयार हुई थी कि मम्मी तैयार की थी बच्चे को? बताना तो जरा।
अभी समझ में आ रहा है, तो ये नहीं तैयार चलेगा, की थी। इतना धीरे से देर से नहीं समझना आपको इसको सही से सही टाइम पे सही से कनेक्शन समझना है। सिचुएशन से रिलेट नहीं करते हो आप अपनी इंग्लिश को, हिंदी से रिलेट करते हो, जबकि हिंदी का जाए तेल लेने, मुझे कोई मतलब नहीं हिंदी के वर्ड से, मुझे मतलब है इंग्लिश से, इंग्लिश वर्ड्स और सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश के वर्ड्स कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा बदलेगा तो वर्ड्स थोड़े बदलेंगे, इसके लिए आप लोग हिंदी वर्ड्स पे चले जाते हैं और इसलिए उलट पुलट करके रह जाते हैं। तो अगर आई रेड इट बोला ही था तो बोल सकते थे कि मैंने तैयार किया, किसको तैयार किया, खुद को किया, तो आई रेड इट माई सेल्फ बोल I देते। read it myself. बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, जो आपने सीखा उसके हिसाब से। माई मदर Yes, रेड इट मी, तो आई रेड इट माई सेल्फ, हाँ I या read ना, it myself. ये सेंटेंस सही हुआ Yes, कि नहीं yes, हुआ? sir. Yes. लेकिन आई रेड इट तो नहीं सही हुआ, आई रेड इट तो नहीं सही हुआ, क्योंकि आई रेड इट किसको, जब आपने कहा था माई मदर रेड इट मी या आई रेड इट माई चिल्ड्रन, तो आप किसी को तो तैयार कर रहे थे ना, तो आपने यहाँ किसको तैयार किया, आई रेड इट, ये क्या हुआ, दिस इज मीनिंगलेस। तो ये कब एहसास होगा इट इज मीनिंगलेस, व्हेन यू गाइस अप्रिशिएट, कि जब आप समझते हो कोई चीज को तो कितना गहरा समझते हो, खाली हिंदी समझना इज नॉट इनफ, नहीं तो फिर ऐसी गलतियां हो जाएंगी। और फंसाता हूं, रुको, बाय द वे आई गॉट रेडी इज फाइन, वो तो सब लोग जान रहे थे, आई गॉट रेडी, आई गॉट रेडी, आई रेडीड माई सेल्फ में एक हल्का सा नुआंस का फर्क है, कि मन नहीं था फिर भी आई रेडीड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड, ओके ठीक है। और कभी कभी एक्साइटमेंट भी आ सकता है, ये आई रेडीड माई सेल्फ फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर द बिग डे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों ही तरह की फीलिंग आ सकती है डिपेंडिंग, खैर वो मेरा मैटर अभी नहीं था नुआंस समझाना, नुआंस आता है फील धीरे धीरे विद टाइम, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। आपने एक सेंटेंस पढ़ा, हर मदर ओपन द डोर, हर मदर ओपन द डोर, बताओ ओपन का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस की वजह से आपने क्या सीखा ओपन के बारे में, क्या जाना, क्या अरेंजमेंट सीखा इस सेंटेंस को सुन के, कि ओपन का जो सब्जेक्ट होगा कौन होगा, मदर, वो तो हमेशा जो दरवाजा खोलेगा, जो भी ओपन का काम करने वाला होगा वो ओपन का सब्जेक्ट होगा, ऐसे सोचिए, ओपन किसने किया, माँ ने ओपन किया दरवाजा, तो सब्जेक्ट माँ है, तो जो अगले सेंटेंस में जो भी ओपन करेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, हाँ कि ना? यस सर। इजी है। मैंने हल्के से आंखें खोली और देखा उसे, say it in English. मैंने हल्के से आंखें खोली और देखा उसे, I opened my eyes slightly and saw her. Okay. I opened my eyes slightly and looked at him or saw him, जो भी बोलना है कोई नहीं, बाद में समझा दूंगा ऊपर। बहुत अच्छा। 2-3 महीने बाद, ये सेंटेंस सीखने के 2-3 महीने बाद आपके सामने एक सेंटेंस आया कि the door opened and she came out with 2 boys. The door opened and she came out with 2 boys. The door opened and she came out with 2 boys. यहाँ ओपन के बारे में क्या सीखा, वही चीज जो पिछली दफे सीखा था या कुछ नया, पहले ये बताइए। नया है सर ये, ट्रांजिट वर्ब और बिकॉज नहीं यास्मीन मैम, पहले मुझे ये जानना है, सर व्हाट्स योर आंसर, आपने वही चीज सीखा जो पिछले सेंटेंस में सीखा था या कुछ नया सीखा ओपन के बारे में? I think knew something. आपको लग रहा है, सिमरन व्हाट डू यू थिंक? Maybe you're not here, you're not mentally here, Simran, because this is not rocket science, okay? You don't have to, actually think this much, because the sentence was, the door opened, and in the previous sentence, my mom opened the door or her mom opened the door. तो वहां एक डूअर था जिसने दरवाजा, मैंने कहा भी था कि जो खोलने का काम करेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, आपने किया था ना? तो अगर आप तुरंत भूल गए, it means you are bothered by something, maybe you have something, you are preoccupied, you're not able to keep this information in mind. So that's a totally different thing, when you are preoccupied. It's not the problem of the lesson, it's the problem of the mind in that moment. I can be preoccupied and not be able to understand even the easiest things because I'm not there, mentally. Okay, so the sentence was, the door opened.
तो तुरंत कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने ओपन मतलब खोलना खोलना कंफ्यूजन, वो ध्यान ही नहीं देंगे सब्जेक्ट का रिलेशन क्या हुआ। अभी आपको समझ में आया कि ओपन का एक नया यूज आपने सीख लिया। यहाँ कोई डोर को कोई ओपन करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जो चीज नहीं सर, खुल डोर रहा है अपने आप वही खुल रहा है। सब्जेक्ट है, यस सर। चीज खुल रहा है वही सब्जेक्ट है। तो आपने एक नई यूज सीख ली ओपन की, जो ओपन के बारे में था, किसी और के बारे में नहीं, ओपन वर्ब के बारे में। ओके, द डोर ओपन, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। तो ये ऐसे करके अप्रिशिएट करना होता है, इसलिए मैं कहता हूं लिसनिंग इज पावरफुल, क्योंकि हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं, हर दिन कुछ नया सीख लेते हैं सुनते के साथ फटाक से। ओ, इसको ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा, क्योंकि सुनते समय हमारे दिमाग में ये चीज चलता है, द डोर ओपन, ओ अभी तक तो था पर माम ओपन द डोर, डोर बाद में था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ कह रहे द डोर ओपन, यानी डोर खुलता है, यानी कि दरवाजा भी सब्जेक्ट है। तो कल के डेट में हम बोलेंगे, ठीक है, अगर सेंटेंस हम बोलना चाहें कि खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, या ठंडी हवा अंदर आई, तो कैसे बोलेंगे? खिड़की खुली और अंदर से एक बल्ब जलता हुआ दिखा, कैसे बोलेंगे? पहला यूज, विंडो ओपन। द विंडो ओपन, द विंडो ओपन। और मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे सिस्टम में ऐसे टीचर्स, मेरी मुलाकात हुई थी अभी गया, मैं गया था ना कुछ महीने पहले, तो वहां एक साहब थे, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता सेंटेंस। क्यों सर, खिड़की खुद से कैसे खुल जाएगी? अरे पागल आदमी, तू इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है या फालतू बकवास करेगा? खिड़की खुद से कैसे खुल जाएगी? हवा चली खिड़की खुल गई, लो। मकसद यहां बताने वाले का था कि खिड़की खुली, ये नहीं कि किसने खोला, समझ में आ रही बात? खिड़की खुली और अंदर एक बल्ब जलता हुआ दिखा, द विंडो ओपन। उसने कहा नहीं नहीं, तो हो ही नहीं सकता, विंडो ओपन, ये इंग्लिश नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिल लोग, फिर मैं बताऊं, जब भी इस पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट में ज्यादा लोग खराब हो तो समझ जाना बताने वाले खराब है, क्योंकि सारे लोग एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं, इतने सारे लोग, इतने शार्प माइंडेड लोग, यानी बताने वाला कुछ गलत कर रहा है। तो सीधा सा मामला था, द डोर ओपन सुनने के समय आप इस बात पे अप्रिशिएट कर सकते थे कि ओपन का सब्जेक्ट डोर भी है। अच्छा, आई बात समझ में दोस्तों? अगर आप इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते को एनालाइज करोगे रियल लाइफ में, दोनों सेंटेंस में फर्क है ना बड़ा? द विंडो ओपन एंड हर मदर ओपन द डोर में बड़ा फर्क है कि नहीं है? कि एक में ओपन का सब्जेक्ट कौन है? एक इंसान जो ओपन का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं शी ओपनड ए स्कूल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूं ए स्कूल हैज ओपन इन माय विलेज, तो ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था द डोर ओपन, उसके हिसाब से अ स्कूल हैज ओपन इन आवर विलेज। तो अगर आप लोग थोड़ा इस तरह से सुनते समय या पढ़ते समय सेंटेंस के ट्रांसलेशन से आगे बढ़ के शब्दों का रियल लाइफ में एक दूसरे से क्या रिश्ता है ये देखना शुरू कर दें, then you guys will perhaps avoid a lot of mistakes you make. Another easy sentence. Well, sometimes I try to avoid meeting people. ठीक है, आपने एक सेंटेंस सुना, Sometimes I try to avoid meeting people. आप भले ही शब्दों की हिंदी ना कर सके पूरे सारे, लेकिन आपके कभी कभी क्या करते हैं, मेरे घर में कोई आता है मिलने के लिए तो हम क्या बोल देते हैं, बहाना करवा देते हैं, राइट? ऐसा इससे अंदाजा लगा कि नहीं? Sometimes I avoid meeting people. इस सेंटेंस से ये अंदाजा लगा, ये हिंदी यही सिचुएशन होता होगा। अगर ये सिचुएशन समझ में आ गया तो बताइए कि कभी कभी कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए और हम कहते हैं नहीं 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 मिलना हमको, ठीक है, राइट? ओके, अब आप बताइए कि पर्सनल लाइफ पे टॉपिक निकले और कुछ लोग हैं चुप, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं बोलना, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? Those people avoid talking to avoid talking to talking someone. on personal topics, personal subject matters, right? हाँ, तो यहाँ पर अवॉइड के बाद टॉकिंग ही हम लोगों ने क्यों बोला पता चला? क्योंकि मैंने अपने सेंटेंस में मीटिंग बोला था। तो अगर आप उसका असर रहने देते हैं अपने आप पे तो बिल्कुल, तो यही होता है सुनने का पावर। लिसनिंग इज पावरफुल बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन कई लोग सुनते हैं,
खाली उसका हिंदी का अंदाजा लगाने के लिए, उन शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि कैसे अरेंज हुए हैं वर्ड्स, क्या फॉर्म है उनका। आपको भी उन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इसी को तो सीखना कहते हैं। तभी तो करेक्शन और एक्यूरेसी आएगी। आप अपनी मर्जी से जो मनाए बोल देंगे तो एक्यूरेसी कैसे आ जाएगी? अगर किसने ये बोल दिया, समटाइम्स आई सम पीपल अवॉइड टॉक ऑन पर्सनल मैटर्स, वहां मैंने कहा था मीटिंग न्यू पीपल, टू मीट नहीं बोला था। तो ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं बहुत सारी चीज गौर करके से। तो लिसनिंग इज पावरफुल। मेरे पास जितनी इंग्लिश है आज के डेट में, एक्यूरेसी जो भी है मेरी इंग्लिश की, वो इस वजह से है क्योंकि आई हैव स्पेंट काउंटलेस आवर्स लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग दिस थिंग्स। ऐसे मेरा दिमाग काम करता है, जो मैं आपसे शेयर किया अभी। इट्स अ ग्रेट टिप अगर आप फॉलो कर पाए तो। और ये सब तब काम करेगा जब आप सेंटेंस का मतलब समझते हैं। जिस सेंटेंस का मतलब नहीं समझते उस पर ये सब ट्राई करने का जरूरत नहीं, उसको जाने दो, ठीक है। बट अगर आपको सेंटेंस समझ में आता है तो उसके साथ ये सब करो, ताकि आप जो सेंटेंस समझते हो गलत मुंह से ना निकले आपके। सबा जी, क्या लगता है आपको, आप कर पाएंगे ये? Yes, sir, I will try definitely. ओके, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। You guys will listen to 6.13 और ये listening is powerful का एक्सपीरियंस करना चाहेंगे आप, ओके। एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू 6.14, 13 and 14 both. तो देखते हैं कि आपने क्या ऐसे गौर किया। There you go. I've shared. That's it. Just listen and show me how much you have benefited from this. क्योंकि आपको जो भी सेंटेंस सुनने को मिलेंगे, समझ में आने वाले मिलेंगे 90% ऑफ दम। तो उनके साथ आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि सेंटेंस का लाइफ से कैसे कनेक्शन है, उसके जो अलग अलग हिस्से हैं आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे Sir, I have a question. हाँ समझ। Sir, I thought a sentence ईद आने वाली है। ठीक है, So it is approaching. ठीक है यास्मीन मैम, आगे बोलिए सबा जी। But in इजी ट्वाई इंग्लिश शायद सर इस तरह से यूट्यूब पे आता है, तो उसपे था, तो उसपे था कि ईद इज अबाउट टू कम, राइट? एंड आई करेक्ट द होली, सॉरी, ईद इज कम सून। आप ईद इज कैसे बोल सकते हैं? इज और कम का कभी कोई रिश्ता है इंग्लिश में? इज है बी वर्ब, उसके साथ V1 कभी पॉसिबल है? मतलब कौन सा टेंस है ये? इज कम कौन सा टेंस है? ईद इज कम, ईद इज टू कम सून। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए। अब हम लोग खुदाफानी नहीं करेंगे, ओके? इज समझ में नहीं आ रहा। Say no, the Eid is around the corner. There are multiple ways of expressing that. My question is, सबाजी ने कहा ईद इज कम, ये और कहाँ हम लोग बोलते हैं इज कम? कहीं नहीं सर। तो ये कैसा इंग्लिश था? इज और कम कैसे कॉम्बिनेशन बना? वेरी बैड सर। बस बात खत्म है, बात खत्म हो गई। उसको पहले छोड़ दिया जाए, उसके बाद देखा जाए, ओके? ईद इज अबाउट टू कम, ईद इज कमिंग, ईद इज अप्रोचिंग, ईद इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है? ऑल दीज आर करेक्ट वेज ऑफ सेइंग समथिंग इज क्लोज, ओके? कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ईद इज अराउंड द कॉर्नर, ईद इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है? ईद इज अप्रोचिंग, ईद इज कमिंग, ऑलराइट, एब्सोल्युटली फाइन, इजी समझ जाते हैं इसको। ईद इज कमिंग क्यों नहीं बोल पाए? ईद इज कम क्यों बोली आप? क्यों ही बोली? क्या सीखा है आपने? समटाइम्स आई काइंड ऑफ स्टार्ट टू फील फ्रस्ट्रेटेड विद दिस काइंड ऑफ मिस्टेक सबाजी, ठीक है? क्योंकि आपको और सारे बच्चों को सबसे पहले मैं जो सीख देता हूं वो ये है कि बी वर्ब के साथ V1 कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता इंग्लिश में, राइट गाइस? बी वर्ब के साथ V1 कभी कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं इंग्लिश में, इम्पॉसिबल, ये होएगा ही नहीं। कुछ भी जगह कहीं भी दिख जाए ऐसा, समझ जाना वो V1 नहीं है, अगर है तो सही। अगर कोई सही It is coming is possible. What? It is coming is right word, right sentence. It is coming Is right sentence.
Tell me why it is not. On what grounds did you doubt its accuracy? Sir, When you doubt something, I need to know what you're basing your doubt on. If you don't have a base, then don't doubt it. And if you have a base, if somebody said it is wrong, that's another kind of thing. कि भाई किसी ने बोल दिया it is wrong. Okay, बात खत्म वहीं पे. कि किसी ने बोल दिया, you know, like there are lots of videos around. Okay, तो किसी ने बोल दिया कि ये गलत है. ठीक है, बात खत्म. Okay, तो वो अलग एक लॉजिक है कि भाई सब किसने बोला था कि it is wrong. Okay, तो my answer will be the same. Have very authentic sources for learning. Otherwise, this will keep happening. Okay. Yes, sir. So Eid is coming is as correct as any of the other sentences I said. Eid is approaching, Eid is around the corner, Eid is close, Eid is about to come. All these are the same. However, they all I have never read Eid is about to come. So I thought it is wrong sentence. Eid is about to come. Why did you think it? अभी जैसे मैंने यास्मीन मैम को बोला कि आपका ना कहने का कोई बेस है किसी चीज को, अगर नहीं है तो उसको आपको ना बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि आपकी मदर टंग तो नहीं है ना. आप तो ऐसा नहीं है ना कि मदर टंग है कि आप फील से बोल दोगे, जैसे कोई हिंदी में कुछ Sir, I पूछे. have heard somewhere, that's why. Again, like I said, so that's unnecessary. Okay. Now, Sabaji, again I will say कि अगर आपके पास रीजन नहीं है किसी चीज को डाउट करने का, तो डाउट मत करिए, बिकॉज आपकी फीलिंग काम नहीं आएगी. वजह बताता हूँ. इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग. हिंदी में कई चीज तो आप बता देंगे कि ये गलत साउंड कर रहा है, गलत फील हो रहा है, बात खत्म. आप लॉजिक नहीं बता सकते, बट आप बता सकते कि हिंदी गलत हिंदी है, राइट. कोई अंग्रेज, अगर कोई फ्रेंच, कोई जर्मन आपसे हिंदी पूछ रहा हो, तो आप अपने गट फीलिंग से बता देंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट. लेकिन इंग्लिश में नहीं. इंग्लिश में आपको गलत होने के लिए, किसी चीज को गलत सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा. पीछे की रीजनिंग पूछनी होगी अपने आप से कि मैं क्यों डाउट कर रहा हूं इस सेंटेंस को, क्यों डाउट कर रही हूं इस सेंटेंस को. अगर रीजन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डोंट डू इट. ओके. Somebody is about to do something or something is about to happen, it means it is going to happen soon. All right. I always about means बारे में. सॉरी सबा जी, ये तो आपकी, मैं क्या ही बोलूं. मुझे समझ नहीं आता कि एक लर्नर क्यों डिसाइड करता कि मैं ये जानता हूं तो यही सिर्फ एक चीज होती है. किसने कहा कि अबाउट मतलब बारे में नहीं होता? दिस बुक इज अबाउट गांधी जी. वेरी नाइस, एवरीबडी नोज दिस इज करेक्ट. तो क्यों ही यहाँ पर अबाउट हम ये वाला सोचेंगे भी क्यों कि यू नो ईद इज अबाउट टू कम, तो यहाँ पर अबाउट. इंग्लिश इज एन इडियोमैटिक लैंग्वेज. क्या आप पहली बार से जान रही है ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसका शब्दों से मीनिंग नहीं लेना देना? I'm about to reach. यस मैम, एब्सोल्युटली. ईद इज अबाउट टू कम. मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ. ईद इज अराउंड द कॉर्नर. कौन सा कॉर्नर के पास में है? कौन कैसे कॉर्नर के चारों तरफ है? बताना जरा सा. तो ये क्या मतलब हुआ? आपको एक्नॉलेज करने की आदत होनी चाहिए. और अगर आपके सोर्सेज ऑथेंटिक नहीं है, जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते, तो छोड़ दें. नहीं तो सोर्सेज ऐसे रखे कि सुनते के साथ यकीन हो जाए, इसने बताया तो सही बताया. ऐसे सोर्सेज रखे, वो जानकारी देता है. नहीं तो आप द्वंद में चले जाओगे, आप रेसलिंग कर रहे हो, तुम्हारा गलत मेरा सही वाला. ठीक है, मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा. ऐसे सोर्सेज रखो जिसको सुनते के साथ आंख, मतलब कहते ना आंख बंद करके भरोसा करना, वो ऐसे सोर्सेज रखो. इसलिए बीबीसी को कहता हूं, बीबीसी 6 मिनट इंग्लिश इज अ ग्रेट सोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश गाइस. बीबीसी 6 मिनट्स इंग्लिश. ओके, एक अच्छा ऐप है, डाउनलोड करो. दिन भर में जितने घंटे बिताओ, यू विल नेवर लर्न एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज व्हेन बीबीसी एक्सेप्ट्स बीबीसी 6 मिनट इंग्लिश. BBC 6 मिनट इंग्लिश. 6 minutes English. Yes, it's a fantastic app to learn English. You know, हर दिन जितना समय बिताना इस ऐप पे बिताओ. They have all sorts of things. They have. It's an app or it's a channel name? It's an app. Okay. You can have you know, conversations there. You can have stories there. You can have grammar lessons there. And the most important thing, everything you learn there is authentic. You don't need to doubt anything. So you can relax and learn. That's the most important thing, isn't it?
Yes. I have to download this Play Store. Of course. So I think it was a lovely conversation, and I hope you guys benefited from it. We are going to continue. Yes, sir. We can use without downloading on laptop. That's great. That's great. That's great. But there is an app as well for mobile phones if you guys want, My suggestion is very, very logical. If you doubt your sources, then when will you trust and when will you doubt? How will you decide what you're learning is right or wrong? So it's very necessary to have a source which is beyond doubt, authentic. And that's why BBC 6-Minute English, amazing. Yep, sir. There are so many BBC 6-Minute English, but find the right one. Otherwise, I'll send you the link in the group so that you guys can download the same. Yeah, that should be better, sir. Okay, fine. I'll share with you. Okay, everyone. Bye, sir. Have a great day. Okay, sir. Bye. Bye, sir. Good night. Bye-bye. See ya. Send the link in the group. Bye-bye. And listen to the audio file, please. I'll see you guys tomorrow.